परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर चंद्र स्वदेश लिखित सप्तामिशन ओडिया अनुवाद। संकोचन ही दुख एवं प्रसारण ही सुख। जहिरे हृदय दुर्बलता आसे भय आसे तहिरे ही आनंद अभाव आउ ताहा ही दुख। चाहिबाटा न पाइबा ही दुख। किछि चाह नहीं सब अवस्था राजी था। दुख तुम कौन कर दुख कहारी प्रकृतिगत नुहे ताकू इच्छा करिले ही कड़ी दिया जाई पारे। परम पिता निकट प्रार्थना कर तुम इच्छा ही मंगल। मु जाने ना तुमथे मोर मंगल मो भितर तुम इच्छा ही पूर्ण हो आउ से तुम राजी था आनंद दुख तुमको स्पर्श कर कहारी दुखर कारण हुआ ना कहीं तुम दुखर कारण हे ना। दुख भी एक रकम भाव सुख भी एक रकम भाव अभाव चाहिबार भावटा ही दुख। तुम्हें जगत रे हजार करी दुख नष्ट कर जे पर्यंत तुम हृदय से अभाव भावटा को काढ़ी न नहींच आउ धर्म ताही कर। परम पिता से प्रार्थना करो तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं उसका पहले संकोच ही दुख है और प्रसारण ही सुख। जिससे हृदय में दुर्बलता आती है भय आता है उसमें ही आनंद की कमी है और वही है दुख। चाह की आकृति ही है दुख। कुछ भी न चाहो अभी अवस्थाओं में राजी रहो। दुख तुम्हारा क्या करेगा। दुख किसी भी प्रकृतिगत नहीं। इच्छा करने से ही उसे भगा दिया जा सकता है। परम पिता से प्रार्थना करो तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता मेरा मंगल कैसे होगा। मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और इसके लिए तुम राजी रहो आनंद में रहोगे। दुख तुम्हें स्पर्श न करेगा। किसी के दुख का कारण न बनो कोई तुम्हारे दुख का कारण न बनेगा। दुख भी एक प्रकार का भाव है सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव का या चाह का भाव भी है दुख। तुम दुनिया के लिए हजार करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम हृदय के उस अभाव के भाव को निकाल नहीं लेते और धर्म ही उसे कर सकता है। Satyanusaran English translation. Contraction is dejection, expansion is delight. There is a lack of happiness in that which brings weakness and fear in the heart, and that is grief. Desire unfulfilled is misery. Don't expect anything. Be prepared for every situation. What can grief do to you? Nobody is miserable by nature. If one wishes, he can wipe it out. Pray to the Supreme Father, Thy will is good. I don't know what will make me good. Let Thy will be fulfilled in me, and be ready to accept that. Joy will remain and sorrow will not touch you. Be not cause of another grief. None will be the cause of your grief. Misery and happiness are both modes of mind. To lack the thoughts and deeds befitting the desire is misery. You may serve the world in 1,000 ways, but you can't destroy its misery until the sense of inadequacy be removed from the heart. Dharma alone can do that. Joy. सबके पास ग्रुप में ये गाना दिया गया हिंदी लीजिए साथ में गाने की कोशिश कीजिए। जाने
तो भाई दीक्षिका माँ सभी के लिए ठाकुर जी के चरणों में मंगल प्रार्थना करती हूँ। मन के बिना क्या रहते हैं मन
Now I request Anvesha Ma to offer her very first Jagar release at the Lotus Feet of Shri Thakur. You can stand up and come pass on the mic. I bow down to the lotus feet of Shri Thakur. I bow down to the lotus feet of Shri Gaurima. I bow down to the lotus feet of Shri Varda. And I bow down to the lotus feet of Shri Acharya Dev. Jai Guru. As we all know, Shri Thakur has done many things in his life, which we still remember of. Today, I would like to share a little aspect of his life with everyone. In his childhood, Shri Thakur was extremely devoted to his parents, and especially his mother. His mother always remained his guru, and he also got Diksha from his mother on behalf of Huzur Maharaj, who came from the Radhaswami Satsang in Agra. He showed extreme devotion for prayer, especially for kirtan, because when he did kirtan, he used to go in a trance, which sometimes lasted for 6 or more hours. When he grew up, he guided men on the right task and dispelling the doubts of men and enlightening him. This way he got the name Thakur. He was in this world to bring peace and joy. Many religious people like Mahatma Gandhi and more have come in touch with him. Sahu Khalil Rahman was a devotee of Shri Thakur. Once when he was abroad, he heard from his wife that his son was very ill and that the doctors gave up hope. So he went to Deoghar to approach Shri Thakur, but Shri Thakur saw Khalil from very far away, and he called him. He said that there was an urgent task,
and he said that he had to go. So Khadir, he couldn't bring up about his son. And the next day he tried again, but again he said to Shish Thakur about his son. But Shishi Thakur, he didn't listen, and he said that he had to go back to his home place. Khadir, he prayed for his son to get better, and he did what Thakur said. When he came back to his home place, he saw that his son was playing in the front yard. He asked his wife what happened, and she said that it was a miracle. That he had gotten better just a day ago, and now he was playing. Khadir knew this was Thakur's doing, and he thanked Thakur very much. I have learned many stuff from writing this Sajan and preparing for it. I got information sometimes from online, and sometimes from the book Shishi Thakur Nukucham, the Century volume, where all rules, regulations, and all are. Take it up. Very good. It's one of my favorite, personal favorite anecdote also about Kaligur Rama. Really nice. Thank you for sharing that. Take it up. Joy Guru. Yeah. Next we have Orpita Ma. She will offer a bhajan at the lotus feet of Shishi Thakur.
ma'am to offer her bhajan. Very good, everyone. तुम बिना प्रभु बंचिबार माने बुझि नाही बुझि नाही बुझि नाही मोर हिची तुमकुले बंचिबाट सिला आनन्ददायी बंचि मोर हिची तुमकुले बंचिबाट सिला आनन्ददायी
request Roman Bhatt to offer her इसको सेट कर, इसको सेट कर। 더불어도 절로 걸으시 더불어도 절로 걸으시 धाराजी হলো মধুময় সুন্দর প্রিয়তম দেবী স্বস্তি সূর্যোদয় রঘুনাথুর চরণ পরশে ধরাজি হলো মধুময় সুন্দর প্রিয়তম দেবী স্বস্তি সূর্যোদয় রঘুনাথুর চরণ পরশে
Now I request our Mihirendra Bhai, who has recently joined Europe and something, but comes from a Satsangi family back in India, to offer his Jajan and Lotus. उपस्थित रितिका, गुरु भाई, माताएं और मेरे भाई बहन को मेरा जय। मेरा नाम वीरेंद्र है एंड मैं ऑब्वियसली इंडिया से हूँ। मेरा बॉर्न मेरा विशाखापट्टनम है, इट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मगर मम्मी पापा तो उड़ीसा के ही हैं, सो मैं कोई और ज़्यादा अच्छे से नहीं बोलता, तो आई स्पीक हिंदी। तो ये मेरा सेकंड सत्संग है यूरोप में। कंपेयर टू इंडिया ये बहुत ही अलग परिवेश है कि जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में लोग आते हैं, सत्संग बनाते हैं, मिलजुल कर चले जाते हैं। इधर क्या होता है, 2-3 दिन रुकते हैं, कैंपिंग होती है, गेट टुगेदर होता है, बॉन्ड बढ़ता है। तो इसी तरह हम लोग बॉन्ड बनाया है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल पूछता हूँ, बच्चे क्यों जाते हैं सत्संग, मतलब स्कूल, वाई बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? बाकी और बच्चे आएंगे तो खेलने को मिलेगा, शिक्षा ग्रहण करने, क्या शिक्षा ग्रहण करने, क्यों, वाई चाहिए कि शिक्षा? पिताजी भेजते हैं ताकि लोग पढ़ सके, कुछ बन सके फ्यूचर में। तो यही सत्संग भी यही कर रहा है, जहाँ बच्चे लोग हम सब जाते पढ़ने के लिए, कुछ सक्सेसफुल क्या कैरियर बनाने के लिए, मगर सत्संग क्या करते हैं, सक्सेसफुल ह्यूमन बनाते हैं, नॉट कैरियर, ह्यूमन। हम लोग को कैरियर को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सत्संग में वही सिखाते हैं और ठाकुर जी में वही सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम स्कूल में सब्जेक्ट रखते हैं, सत्संग में सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ईश्वरती है, नाम ध्यान है, जजन जाजन, बहुत कुछ है। इसमें मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर बताना चाहता हूँ, ईश्वरती। हम क्यों करते हैं ईश्वरती? सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, ईश्वरती करते हैं। क्यों करते हैं, वाई? हम उनको प्रेम करते हैं, तो प्रेम का ऑफर है ये ठाकुर जी के लिए। मोर देन 50% करेक्ट है। मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस है ठाकुर जी को लेके, ईश्वरती को लेके, मैं वो बताना चाहता हूँ। कुछ प्रिपेयर तो नहीं किया, जो मेरा थॉट है वो मैं बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल 2 दोस्त है, ए एंड बी। अगर ए बी को दोस्त मानता है मगर बी ए को नहीं मानता, तो वो दोस्ती कहलाता है? नहीं। अगर ए और बी एक दूसरे को दोस्त मानते हैं तो दोस्ती कहलाता कि नहीं है? ऐसे ही। तो अगर ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हम नहीं करते, तो बॉन्ड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मगर ठाकुर जी प्रेम करते, हम भी प्रेम करेंगे तो बॉन्ड बढ़ेगा ना। मगर बॉन्ड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लेन देन होती रहती है दोस्तों के बीच, ऐसा लेन देन होता रहता है। क्या हम ईश्वर देते हैं, वो हमें इंटरेस्ट देते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना लाइफ का बोलता हूँ, इन 2022 2 साल बैक मेरे बर्थडे के अगले दिन मैं था इंदौर में था, मध्य प्रदेश में था, एंड मध्य प्रदेश से नजदीक उज्जैन महादेव भी था। तो दर्शन करने के लिए गया था सुबह सुबह, लौटते वक्त मैं अपने दोस्त के साथ आ रहा था कार में, एंड कार 110 के स्पीड पर था, एक्सीडेंट हो गया एंड कार पूरा स्क्रैप हो गया। हम लोग पूरा 60 फीट दूर गिरे फ्रॉम द हाईवे एंड 2 फ्लोर ऊपर जंप किए कार के अंदर। तो कार पूरा पेस्ट हो गया था ऑलमोस्ट। मैं उस दिन क्या किया, ईश्वरती नहीं किया था सुबह सुबह,
मगर मैं जगह था, मगर मेरे पास सामान नहीं था। जो चीज रहता है वो मेरे फोन में था, और फोन मेरा डिपॉजिट है एक जगह पे। तो मैंने प्रार्थना किया कि जब भी मैं खाली रहूंगा मैं तुरंत आके स्तुति करूंगा। तो निकलने से पहले दोस्तों को बोला मैं पहले स्तुति करूँ उसके बाद निकलूंगा। मैंने पहला किया, उसके बाद निकले। एक्सीडेंट हुआ, लकीली कोई किसी का कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मगर सिविल डैमेज हुआ। किसी का इधर फ्रैक्चर हुआ, किसी का ऊपर कट हो गया, किसी का ऊपर निकल गया। मेरा क्या हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ, हल्का मतलब खरोच आया। एंड दैट टू कार का जो मोस्ट मेजर जो डैमेज पार्ट था वो मेरे यहाँ था, एंड मेरे को कुछ नहीं हुआ। अभी भी मेरे को फोटो का चौक जाओगे, बहुत डेंजरस सीन है, पूरा खून लगभग आई कैन एक्सप्लेन, मगर किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। मगर ये मेरा बेनिफिट है, मैंने दिया, उन्होंने मेरे को दिया, मेरे पुनर्जन्म हुआ, ऐसा ही हुआ। तो इसीलिए हम स्तुति करते हैं। क्यों? हम उनसे बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, बॉन्ड बढ़ाएंगे, प्रेम करेंगे, तभी हम लोग कुछ और मिल सकता है। तो ये मैं बोल के मैं सब चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी प्रैक्टिकल, छोटे पैकेज में बड़ा वो पूरा जाएगी। ओके, सभी ठाकुर जी की तरफ देखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। सभी को जय गुरु। मैं एक उड़िया गाना प्रेजेंट करूँगा, लेकिन मेरा उड़िया से बहुत ही अच्छा है। सो मोबाइल दूर रखो।
यहाँ पे प्रेजेंट किया बोले ना बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। I never knew we could pull this off. इसके कवर रखे थे Now I request everyone that we get enlightened with the jajal of Sri Ratikanda, who has come all the way from Germany, and an SPR of Shashi Thakur. I request him to offer his jajal. परम प्रेम श्री ठाकुर का परम दयावत श्री परम प्रकाश यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा रामनंदित जय गुरु। सब लोग कैसे हैं आप लोग? और ये सत्संग कैसे आप लोग अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सत्संग ठाकुर जी का जो ये परिवेश है यही है सत्संग। ये जो वाइब्रेशन है यही हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है। जैसे अभी वो भी जैसे एक जाजन में बोल रही थी कि कैसे ठाकुर के पास एक भक्त आए थे, उनके बेटे का कुछ निवेदन करने के लिए। उनका बेटे का कुछ प्रॉब्लम था, कैसे ठाकुर जी उसको वो मेंटलिटी से डाइवर्ट किए कि तुम जाओ यहाँ पे तुम्हारा ये काम है ना। तो यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि कुछ मिरेकल हुआ, वो ठाकुर जी उसको भेजे, इधर में बच्चा का कुछ हो गया। वहीं पे मिहिर भाई भी ऐसे ही कुछ बोले कि कैसे वो जो हम लोग इष्ट वृत्ति ठाकुर जी का प्रिंसिपल्स में आता है जो हम लोग करते हैं, उसमें भी सेम वही है कि कैसे जैसे मिहिर भाई भी बोल रहे थे कि सिर्फ देने से ही जब वो लेन देन जब होता है किसी के साथ, तब वहां पे जो प्रेम है, जो बॉन्डिंग है वो बढ़ता है, वो गढ़त्व होता है ना। तो हम लोग कैसे जैसे हमारे फैमिली लाइफ में भी हम लोग करते नहीं है कि हमारे बगल में चलो कोई आया है न्यू रिलेटिव नहीं, कोई एक फैमिली आया, चलो उसके घर में कुछ आज अच्छा कुछ बनाए, चलो कुछ दे के आते हैं। ये ज्यादातर मान लो करती हुई होंगे, है ना। यहाँ पे कल ही मैं आया जब आर्नम में, वो एक बगल में एक रहती थी इंडियन फैमिली, वो कुछ दिवाली के लिए कुछ खाना वगैरह लेके आई है, कल्याणी माँ को दी। तो ये इसी से हम लोग पता चलता है कि कैसे लेन देन से हम लोग जो प्रेम है वो कैसे बढ़ता है। मैं बोलूंगा वो जो अन्वेषा जो ये स्टोरी बताई, ठाकुर जी बोलते थे कि इस जगत में मिरेकल कुछ नहीं होता है। ठाकुर जी पूरी साइंटिफिक के पीछे विश्वास करते हैं, मिरेकल कुछ नहीं होता है ना। कैसे नहीं होता है? हम लोग को जो पता नहीं चलता है, हम लोग सोचते हैं कि मिरेकल हो गया है, लेकिन ठाकुर जी बोलते थे कि उसके पीछे क्या कारण है उसको देखो, तब पता चलेगा कि वो क्या है। जैसे अन्वेषा जो बता रही थी, उसमें ठाकुर जी उसको बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ पे ये काम है करके आओ। वहां पे क्या हुआ, अगर साइंटिफिक वे में देखेंगे तो वो जो बच्चा था उसका तबीयत अच्छा नहीं था और उसका प्रेम उसके फादर के प्रति बहुत ज्यादा था। तो ठाकुर जी उसको बेटे से दूर कर दिया थोड़ा कि आप जाओ वहां पे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो बेटा को जो थोड़ा सीरियस था, उसका मन में ये था कि पापा को देखना है, और पापा जो कि दूर चले गए, अब वो वेटिंग में रहा कि पापा आएंगे तो मिलेंगे, आएंगे तो मिलेंगे। ऐसे करते करते वो हील होते गया। ये प्रेम है, लव है, जो ठाकुर जी बहुत बोलते हैं। और जो मिहिर भाई का भी था, उस पे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर साइंटिफिक वे में जाएंगे, मैं जो मानता हूँ वही मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर पर्सनली नहीं ऐसा कुछ, मैं जो मानता हूँ इतने दिन से मैं जो फॉलो कर रहा हूँ ठाकुर जी को, मैं यही सीखा हूँ कि ये जो हम लोग, उसने कहा इष्ट वृत्ति है, ये वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है ठाकुर जी का, जजन जाजन इष्ट वृत्ति। और जो है स्वस्थनी सदाचार, वो थोड़ा अपर लेवल में हो गया। तो इसमें क्या होता है, इष्ट वृत्ति जो होता है, जैसे प्रणय भाई बोल रहे थे कि हम लोग अपने
प्यार से उनको प्यार करते हैं हम लोग, उनको एक कुछ ऑफर करते हैं, है ना। मेन अगर नॉर्मल देखेंगे तो यही है कि हम लोग यहाँ पे खास करके यूरोप में हम लोग भी जो आए हैं, हम लोग सारा दिन में जो भी करते हैं, स्टार्टिंग में दिन का स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ठाकुर जी को एक भोग के हिसाब से देते हैं कि ठाकुर जी हमारा आज का सारा दिन अच्छा से जाए। मैं पता नहीं मेरा क्या होगा नहीं होगा, ये मेरे तरफ से एक प्यार से एक ऑफरिंग है और मेरा आज का दिन सही से चले। तो यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट सरेंडर आता है हमारे तरफ से कि सारा दिन का मैं छोड़ दिया ठाकुर जी के ऊपर कि मेरे को पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, आज का सारा दिन में क्या करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं पता, ये मेरे तरफ से आज का दिन अच्छा से बीत जाए बस। अगर ये सिंपल वे में समझने के लिए है। अगर साइंटिफिक वे में जाएंगे इसको तो इसमें क्या होता है, ठाकुर जी एक जगह बोल रहे हैं, हम लोग जो इष्ट भृति करते हैं, जो लोग करते हैं वो लोग समझेंगे और जो नहीं करते हैं वो भी समझेंगे कि हम लोग जो ये ऑफरिंग देते हैं इस पे क्या होता है। अगर परफेक्ट वे में किया जाए, जैसे ठाकुर जी बोले हैं, सुबह उठना है थोड़ा फ्रेश होके, भक्ति थोड़ा होना चाहिए डिवोशन के साथ, वो फीलिंग रहना चाहिए अंदर में कि ठाकुर जी मेरे तरफ से ये है, मेरा दिन अच्छा हो, थोड़ा उसमें रहता है। उससे क्या होता है, ये जो हर एक दिन प्रत्येक दिन जो हम लोग करते हैं, ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होता है, एक एनर्जी स्टोर होता है और ये एनर्जी वो नॉर्मल एनर्जी नहीं होता है, ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है जो हमारे बॉडी में स्टोर होते जाता है। और वही एक्स्ट्रा एनर्जी जो स्टोर होता है हमारे बॉडी में, जब हम लोग अपने लाइफ में कुछ भी डिफिकल्टी फेस करते हैं, जैसे मीर भाई बता रहे थे उनका वो एक्सीडेंट वाला केस, जब भी ऐसा कुछ हम लोग फेस करते हैं तब वो एक्स्ट्रा एनर्जी काम में लगता है। हम लोग के अनजाने में वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो स्टोर होते रहता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पे काम करता है हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिरेकल कुछ नहीं है। तो इसमें समझना है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, ठाकुर जी को ऑफर कर रहे हैं कुछ, तो उसमें वो भाव रहना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो एनर्जी कितना ज्यादा होगा। तो इसमें वो भी समझना है हम लोग कितना ही करते हैं हम लोग ठाकुर जी के लिए, उसमें अगर ऐसा हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तब ठाकुर जी जैसे चाहे तो अगर वैसे करेंगे हम लोग, तब पता नहीं क्या करेंगे हम लोग। ऐसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग यूरोप में, है ना। तो ये चीज को हम लोग को अपने में ठाकुर के प्रति प्यार जो है वो उसको गाढ़त्व करना है, जो फीलिंग है उसको और बढ़ाना है, ताकि हम लोग लाइफ में कुछ भी करें वो सक्सेस हो। और एक चीज, ये मिहिर भाई जो बोल रहे थे वो मेरे फैमिली में भी हुआ था। मैं शायद बहुत पहले शेयर भी किया था। मेरे फैमिली में मेरे पापा मम्मी दादाजी और अंकल आंटी वो लोग भी ऐसे ही जा रहे थे कहीं पे, और सेम एकदम रोड के साइड में ऐसे ढलान था, वो 3 राउंड कार समर सॉल्ट टाइप का बोल सकते, वो होके वो गिरा। और फोटो मेरे पास भी अभी शायद नहीं है, वो ऊपर से पूरा दब गया है, साइड का पूरा मिरर टूट गया है। वो कोई भी देखेगा बोलेगा सब खत्म। तो लोग सब दौड़ के आए थे, बगल में खेती हो रहा था, तो उस टाइम तक सब लोग बाहर निकल गए। सब पूछ रहे हैं मेरे पापा वो लोग को कि जो लोग था वो लोग को हॉस्पिटल लेके गए कि नहीं, कहा है वो लोग। और जब पापा लोग बोले अरे हम ही लोग थे, कोई डरने का बात नहीं, तब वो लोग मिस हो, क्योंकि साइड में कार देख रहे और बगल में इन लोगों को देख रहे। तो बोलने का वही है कि हम लोग जो करते हैं उस पे हमारा फीलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि हम लोग किस भाव से ठाकुर जी को प्यार कर रहे हैं, उसका रोल बहुत बड़ा है। वो रोल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारे लाइफ में हम कैसे उसको अनुभव करेंगे। इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। ठाकुर जी आज जो सत्यानुसरण में पाठ हो रहा था,
उस पे ठाकुर जी कितना सिंपल वे से समझाते हैं हम लोग को, ये अच्छा भी लगता है मेरे को कि ज्यादा कुछ पेचीदा नहीं है, मतलब एकदम सिंपल वे में हमारे लाइफ में कैसे तुमको लीड करना है। ठाकुर जी वो सत्यानुसरण जो बुक है हमारा, वो ठाकुर जी ने लिखा था कि हमारे लाइफ में कैसे चलना है उसके बारे में पूरा डिटेल में उसमें है। और हम लोग जैसे जैसे सत्यानुसरण अपने लाइफ में बढ़ते बढ़ते पढ़ते हैं, हर एक चीज को एक अलग फीलिंग से समझते हैं।